ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کی اکثریت. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 99 نشستیں جیت گئے. مسلم لیگ نون کا 71 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر. 53 سیٹیں پیپلز پارٹی کے نام. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان 17, قاف لیگ 3, جے یو آئی 2 اور استحکام پاکستان پارٹی 2 حلقوں میں کامیاب ہو سکی. بی این پی 1 نشست لے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئی. پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ سینچری کر لے گی. سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں میں سے 84 پر پیپلز پارٹی کامیاب. پیپلز پارٹی کو خواتین کی 20 مخصوص نشستیں ملیں گی. اقلیتوں کی 6 مخصوص نشستیں بھی ملیں گی. سندھ اسمبلی کے 168 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پاس 110 اراکین ہوں گے. امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو انتخابات میں مداخلت کے الزامات پر تشویش. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا مداخلت کی چھان بین ہونی چاہیے. عوامی امنگوں کے عین مطابق نتائج کے منتظر ہیں. امریکہ اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کیمرون نے کہا انتخابات کی شفافیت پر خدشات ہیں. نتائج میں نمایاں تاخیر اور گنتی میں بے ضابطگیوں کو بھی نوٹ کیا. مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے. یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا غیر یقینی صورتحال میں انتخابات ہوئے. لیول پلئنگ فیلڈ کی عدم فراہمی پر افسوس ہے. بعض رہنما انتخابات میں حصہ نہ لے سکے. انٹرنیٹ کی بندش اور انتخابی عمل میں مداخلت پر اظہار افسوس. انتخابی بے ضابطگیوں کی جامع اور بروقت تحقیقات کا مطالبہ. نواز شریف کی شکست کے باوجود حکومت میں آنے کی کوشش. کامیاب پارٹیوں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی تھی. شہباز شریف کو ملاقاتوں کا ٹاسک دے دیا. شہباز شریف آج آصف زرداری سے ملاقات کریں گے. لیگی قائد نے اپنے خطاب میں اکثریت نہ لینے کا اعتراف کیا. ساتھ میں کہا مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ بڑی جماعت ہے. کہا موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سب مل کر ملک کو بھنور سے نکالے. قوم کی حالت بدلے گی اور قوم سکھ کا سانس لے گی. چاہتے ہیں دنیا اور پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں. نواز شریف نے NA-15 مانسیرا کا نتیجہ چیلنج کر دیا. نتائج روک کر دوبارہ گنتی کرائی جائے. الیکشن کمیشن میں درخواست. پیپلز پارٹی اور نون لیگ قیادت کے درمیان اہم بیٹھک. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ملاقات. شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا. ذرائع کا کہنا ہے آصف زرداری اور شہباز شریف مل کر حکومت کرنے پر اتفاق. حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتیں رائے پیش کریں گی. آئندہ ملاقات میں معاملات کو مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی. شہباز شریف کا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون پر رابطہ. حیدر عباس رضوی نے تصدیق کر دی. اسپیچ کی ہے تو بیوقوفی کی ہے، جلد بازی کی ہے. تو شو کر رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. 70-72 ووٹ پہ وکٹری اسپیچ کیسے؟ جتنی کم پارٹی ہو اتنا بہتر ہوگا. اگر 6 پارٹیاں بیٹھیں گی تو وہ PDM والا حال ہوگا. 6 پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی تو PDM والا حال ہوگا. نون لیگ کے پاس نشستیں ہی نہیں تو وکٹری اسپیچ کیسے کر دی؟ نواز شریف کی تقریر قبل از وقت ہے. کیا نواز شریف ہمارے منشور کو اور اون کریں گے؟ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کا نواز شریف کے خطاب پر رد عمل. کہا PTI کے فیصلے کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. حکومت بنا ہی نہیں سکتے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں محترم ضلع سبحانی، محترم نواز شریف صاحب واپس جائیں گے اور یہی کہتے ہوئے جائیں گے مجھے بلایا کیوں. ان کی کوئی ایسی میجورٹی نہیں ہے. جی اپنی جیت جو ہے وہ بھی ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں وہ متنازع ہے. نون لیگ مرکز تو کیا صوبے میں بھی حکومت نہیں بنا سکتی. تحریک انصاف بغیر بے ساکھی کی حکومت بنائے گی. سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں نواز شریف کی یاسمین راشد کے خلاف جیت متنازع ہو چکی. اسد قیصر نے کہا KP پنجاب اور وفاق میں ہم حکومت بنائیں گے. وفاق میں ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہیں.
पहले छोटी जमातों के साथ राब्ते की कोशिश करेंगे। अली जफर अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मिलेंगे, आज शाम तक फैसला हो जाएगा। अगर आपसे 2-4-6 महीने के लिए चलाना है तो फिर आप पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें। उन्होंने कुछ असलूबी से व्यक्ति की इतनी शर्मिंदगी की जो तकरीर की है, शर्मिंदा होकर, उसमें उन्होंने मानी हमारी बात और रजाई खान को बुला दिया। 35 तो वो लोग हैं जो पीटीआई से दूर तक जिनका ताल्लुक थी वो एक्चुअली आजाद है। इंतखाबात में नून लीग को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वज़ारत उज़्मा से मुतालिक पीपल्स पार्टी सबको निचोड़ लेगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबरा कहते हैं 35 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के साथ नुमाइंदे बिकने के लिए तैयार हैं। हुकूमत 6 माह चलानी है तो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दे। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा नवाज शरीफ किस बुनियाद पर खिताब कर रही हैं। इसका मतलब है कि उनको आगे के नताइज भी मालूम है कि कौन सा तरीका है 2 नंबरी से जीत कर हुकूमत करना शुरू कर दें। सुबह 6 बजे तक नताइज कुछ आ रहे थे, अचानक तब्दील होना शुरू हो गए। आजाद उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। मानसहरा में नवाज शरीफ को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान को होम ग्राउंड में अली अमीन गंडापुर ने पछाड़ दिया। सिराजुल हक होम ग्राउंड दीर में आजाद उम्मीदवार से हार गए। मुस्लिम लीग नून के राना सना को होम ग्राउंड फैसलाबाद में शिकस्त। ख्वाजा साद रफीक और मुर्तजा जावेद अब्बासी को भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने हरा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशस्तें हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक और महमूद खान को भी असम्बली से बाहर कर दिया गया। साबिक वजीर आला आफ्ताब शेरपाओ, अमीर हैदर होती और एमल वली खान अपनी नशस्तें न बचा सके। एएनपी के गुलाम अहमद बिलोर, मियां इफ्तिखार भी हार गए। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक को भी शिकस्त का सामना। पंजाब असेंबली में नून लीग 131, इंडिपेंडेंट 126 नशिस्तों पर कामयाब करार। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और टीएलपी 1-1 नशिस्त पर कामयाब करार। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें जीत गई। एमकेएम 28, इंडिपेंडेंट 14 नशिस्तों पर कामयाब। जीडीए और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंडिपेंडेंट 90, जेयूआईपी 7, मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी 3 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9, जेयूआई की 8, इंडिपेंडेंट 5, बीएपी 4, पीएनएपी, जमात इस्लामी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के हल्का आईन 128 में नताइज रोक दिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं आरओ ने गैर कानूनी तौर पर उन्हें और अहलिया को निकालकर फॉर्म 47 जारी किया। इब्तदाई नताइज में उनको 1 लाख से जायद वोटों की बरतरी थी। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सरकारी नताइज रोकने की इस्तदा कर दी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा अवामी फैसले पर खुश दिली से सरे तस्लीम खम। सरदार लतीफ खोसा साहब को दिली मुबारकबाद। अल्लाह आने वाली पार्लिमान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। एमपी रहनुमा अमीर हैदर होती ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। सोशल मीडिया पैगाम में अपने हरीफ आजाद उम्मीदवार आतिफ खान और सूबाई असम्बली पर कामयाब अब्दुल सलाम को मुबारकबाद दी। मुस्तफा नवाज खोकर ने लिखा मैं अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूं, लेकिन एनए 48 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता अली बुखारी जीते हुए थे, उन्हें हरा दिया गया। जिनको नतीजा बदल कर जिताया गया है वो दौड़ में कहीं नहीं थे। शुएब शाहीन भी एनए 47 से वाज़ेह बढ़तरी के साथ जीत चुके हैं। नताइज हवाले नहीं किए जा रहे हैं। बदतरीन धांधली आग से खेलने के मुतरादिफ है।
MQM की जानिब से 91 आजाद उम्मीदवार हैं, उनको पेशकश करती है। आइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमें कोई वादा नहीं चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत चाहिए। आजाद उम्मीदवार MQM में शामिल हो जाएं, आए मिलकर इस जागीरदाराना वडेराना निजाम को चैलेंज करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशकश। कहा, जमीर के मुताबिक फैसला करें, हम मिलकर अवामी राज कायम करेंगे। मुस्तफा कमाल ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया, बोले अपना मैंडेट खत्म करो, घर जाओ, अब हम शहर संभालेंगे, नया बल्दियाती निजाम लाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। फारूक सत्तार ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। MQM कारकुनों का मरकजी इलेक्शन सेल पर जश्न, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी पहुंच गए। जहां तक नताइज की बात है, इन नताइज को हम तमाम जो भी हमारे पास जितनी चीजें भी जमा हम कर सकें उसके मुताबिक चैलेंज भी करेंगे, और जो हमारा जमहूरी हक है एहतजाज का वो भी करेंगे। ये आवाम के मैंडेट की तौहीन तो नहीं होने देंगे, हम कभी कबूल नहीं करेंगे इसको, न हम करेंगे न आवाम करेंगे। हम इस नताइज को नहीं मानते, हर सतह पर एहतजाज करेंगे। MQM को कराची में 5% भी वोट नहीं पड़ा। MQM के नंबर बढ़ाकर 10,000 से लाख वोट कर दिए। अगर यही नतीजा देना था तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत थी? 38 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं NA की 2 से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आगे थी। दीगर हल्कों में सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और PTI के आजाद उम्मीदवारों को मिला। रात के इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया। नताइज में मुबैना तब्दीली और ताखीर के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और TLP के उम्मीदवारों और कारकुनों का RO दफ्तर के बाहर धरना। गुजरात में भी मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कैसरा इलाही और शुमारा इलाही भी मौजूद। ये कैसे इंतखाबात हैं? जीतने वालों को रातों रात हरवा दिया गया। पाकिस्तान के शहरियों ने नताइज पर सवालात उठा दिए। किसी ने कहा जिस लाडले को लाए उसे खुद पता नहीं वो कैसे जीता। कुछ ने कहा रात को पसंद किए उम्मीदवार के जीतने की खुशी सुबह को गम में बदल गई। कोई बोला धांधली के हमाम में सभी नंगे हो चुके हैं। पुलिस अफसर को थप्पड़ क्यों मारा? फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट के थाना सदर में दर्ज FIR में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकार को धमकियां देने की शिक शामिल है। फिरदौस आशिक अवान ने 8 फरवरी को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस ASI को थप्पड़ मारा था। शांगला में NA11 में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमात के कारकुनों का एहतजाज। मुश्ताइल अफराद ने RO की गाड़ी जला दी, हालात कशीदा। पुलिस शेलिंग, हवाई फायरिंग, कारकुनों का पथराव, 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। डेफना हॉशमैन रेंड अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जमहूरियत और इंसानी हुकूक नामजद। हतमी तकर्री के लिए सेनेट की उमूर खारजा कमेटी में पेशी। डेफना हॉशमैन का सिख रहनुमाओं के कत्ल की भारतीय साजिश पर इजहार तशवीश। कहा अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI इस मामले पर काम कर रहे हैं, अपने खदशात पर खुलकर बात करेंगे। HBL PSL 9 की ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की भी तैयारी। ऑफिशियल तराने पर रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा।